Okay, so in today's class we will be revising about the concept of linear equation in two variables, and then we will be solving lot of questions based on the topic, and that will also include the questions that were asked in the board exam and some other very important questions. And if you guys have any other doubt, then what you can do is you can send your doubts to me, and I will solve the questions. This revision session of this particular topic will continue for 3-4 classes. So whatever doubt you have, please keep on sending me. I will try to solve those doubts also. And uh, in addition to that, the questions that I have selected, we will be solving those questions. And one thing I can assure you, if you solve these questions thoroughly with concepts, then there is no chance that you will lose marks in your exam, be it NTSC exam or be it your board exams that is just round the corner. So let us get started. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is the linear equation in two variables. So as we have already learned that an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, it is called a linear equation. Why it is called a linear equation? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है that is 1, और y की जो पावर है that is also 1. First of all, why it is called equation? Because it is equated to 0. And secondly, why it is called a linear equation? Because here the power of x and power of y are 0. Here one thing you should know is ये a b और c क्या है. A, b and c are real numbers, and the another condition that is here is a and b cannot be simultaneously 0. ऐसा नहीं हो सकता है कि a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए. दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. या तो a 0 होगा तो b 0 नहीं होगा, या फिर a 0 नहीं होगा तो, या फिर b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा. फर्दर फर्दर अगर ए और बी दोनों हमारे 0 नहीं होंगे, इफ a and b both are not 0, and for instance c is a 0, then this will be a straight line that will pass through the origin. Here x and y are called the unknowns. A, b and c are called the constant, and they are a, b and c are basically they are real numbers. Or why it is called a linear equation? Because the power of x and the power of y here is 1. Now अब हम बात करते हैं कि since it involves two variables, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दो variables हैं, so it is called a linear equation in two variables. And the standard form of representation of a linear equation is a1x plus b1y plus c1 excuse me, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, or a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the standard form of representation of a linear equation. अब हम बात करते हैं सर कि linear equation तो हमें मिल गया, अब इन equations को अपन solve कैसे करेंगे. देखो, linear equation जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0, basically it is representing a straight line. What we are having two straight lines. एक straight line L1. Let us try to understand this graphically कि what basically it will mean. अगर मैं एक linear equation के pair of linear equation के solution की बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? First let us try to understand that. अगर एक equation है which is equal to, okay, this is not pen mode. अगर कोई इक्वेशन है मेरे पास that is a1x plus b1y plus say c1 equal to 0, so definitely it will represent a straight line, and it will represent a straight line, ये मेरे को पता है. Next equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, that is also a straight line. अब बेटा इस दुनिया में, ठीक है, on the planet earth,
there can be only 3 possibilities when 2 straight lines are involved. जहां पे 2 स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व हैं वहां पे सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर? पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि द 2 स्ट्रेट लाइंस डोंट मीट एट ऑल, यानी कि वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं. और ये तो हम जानते हैं कि प्लैनेट अर्थ पे 2 पैरेलल लाइंस एक प्लेन में कहीं नहीं मिलती हैं. प्लैनेट अर्थ पे 2 पैरेलल लाइंस एक प्लेन पे कहीं नहीं मिलती है. दिस वी नो, दिस इज a Euclid's axiom that we have already learned, that we have studied in 9th standard. हाँ, प्लैनेट मार्स पे मिलती होगी तो आई डोंट नो, बट प्लैनेट अर्थ पे 2 पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं. So if the graph of the equation is, if the 2 straight lines are parallel to each other, if the 2 straight lines are parallel to each other, my dear friend, in that case what will happen? In that case what will happen is they will have no solution. क्योंकि the point of intersection of the graph of 2 straight lines represents the solution. The point of intersection of graph of 2 straight lines represents the solution. Now, if the straight lines are not intersecting at any point, then what we will call that the 2 straight lines does not have any solution. Dusra case, they might have one solution. They might have one solution, that is, they might intersect at one point. The 2 straight lines, they might intersect at one point. Third condition is they might overlap over each other. एक ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है. दूसरी स्ट्रेट लाइन इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है. इसके ऊपर कैसे ओवरलैप कर सकती है सर? that I will show you in just a minute. वो कैसा ग्राफ होता है, कैसा क्या होता है, that I will show you. Just wait for a few minutes. So ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, this basically represents 2 straight lines which are intersecting at only one point. अब सवाल एक ये उठता है कि सर क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइंस किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? The question is with you only, that the 2 straight lines, they intersect at only one and only one point. So there won't be any other point जहाँ पे दोनों straight lines intersect करेंगी. So this is a case of unique solution where the 2 straight lines are intersecting at only one point. ठीक है, आगे की बात करें. अगला जो कंडीशन मैंने आपको बताया था जहां पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात है, देखो ध्यान से. यहाँ पे एक इक्वेशन है 2y plus x minus 4 equal to 0. दूसरी okay, there is some problem here. Wait. हाँ, एक इक्वेशन है 2y plus x minus 4 equal to 0. Second equation is 2x plus 4y minus 10 equal to 0. Now, if you have drawn the graph of the 2 straight lines, what you have found that the 2 straight lines are parallel to each other. At no point they will be meeting with each other. So the 2 straight lines are parallel to each other. That is why I will say that these 2 equations has no solution. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं जहां पे the 2 straight lines have infinitely many solutions. So one equation is 4x plus 8y minus 20 equal to 0, and the second equation is 2x plus 4y minus 10 equal to 0. Now I would like to you to analyze something. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो पहली वाली इक्वेशन है ना सर, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए. तो जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, डेफिनेटली या तो दोनों नंबर 0 होंगे या तो कोई एक नंबर 0 होगा. ठीक है, अब ये जो 2 है ना सर, ये 2 तो 0 हो नहीं सकता. इसका मतलब ये है कि दिस 2x प्लस 4y माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन जो आई है वो दोनों इक्वेशन सेम है?
तो अगर दो लाइंस की इक्वेशन सेम है, अगर एक लाइन को आप एक तरीके से रिप्रेजेंट किया, दूसरी लाइन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया, बट इन द एंड इट इज द सेम लाइन एट which was represented in the first case, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि the two lines will be overlapping on each other. देखो यहाँ पे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है. The two lines are overlapping on each other. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि there will be infinitely many solutions. इस सिस्टम, ये दो स्ट्रेट लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कई सारे सॉल्यूशंस होंगे. देयर वोंट बी एनी यूनिक सॉल्यूशन, there won't be any unique solution, so the two straight lines will have infinitely many solutions. Next, तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. आपके पास सवाल ये आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस, draw the graph of the two straight lines and find the area of the triangle or find the solution of the solution, find the solution of the two. या आपके पास ये आएगा solve the equations graphically. तो आपको करना कुछ नहीं है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद जहाँ पे वो दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपको लिख देना है कि दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन स्ट्रेट लाइंस को, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे. सो द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. द नेम ऑफ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब ये सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड जो अपन करने पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए देखो, आई गो बाय द बेसिक. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो if anybody can help me with this, whatever the thing is written in Gujarati, please tell me. But in English it means the action of replacing someone or something with another person or thing. यहाँ पे हम क्या करेंगे, basically what we are going to do in substitution method is, suppose करो आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x plus 3y is equal to 7 और दूसरा आपको दिया हुआ है 7x plus 2y is equal to 9. फाइन, आप क्या करोगे, आप यहां से लिखोगे x is equal to 7 minus 3y. Now what you will do, you will put x is equal to 7 minus 3y here, so it will become 7 into 7 minus 3y plus 2y is equal to 9, and then we will solve, and whatever that I'm getting the answer, that will be my answer. That is not a concern here. But the thing is, the substitution method means आप एक की जगह दूसरे को substitute कर रहे हो. Suppose I'm not coming from tomorrow, तो मेरी जगह जो आएगा, he will be substituting me. He has replaced me. ठीक है, so this method is called substitution method. अगर हम हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग देखें तो ये तो बहुत और भी ज्यादा डिफिकल्ट है. इट इज कॉल्ड किसी दूसरे के स्थान पर रखना, प्रतिस्थापन करना. ठीक है, that is not a concern. Nobody is going to ask you what is the meaning of substitution, but it is important. Because you should know these methods. Yes, like in cricket we have a substitute. जैसे कि क्रिकेट में हमारे पास substitute होता है. In hockey we have a substitute. हॉकी में हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है. एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी चक दे इंडिया, उसमें in the last or in the second last match the most experienced player substituted or she replaced some inexperienced player, and that match the team won. Okay, proxy for anything. Okay, don't talk these terms. इन terms को बोल के मेरे को मेरे कॉलेज की याद आने लगती है कि मैंने बहुत प्रॉक्सियां लगवाई हैं. एनीवेज, अब व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कैसे करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन को, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. क्यों सर, अगर मैंने y को x के टर्म्स में लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? विल माय मेथड बी नॉट बी काउंटेड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड?
ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, और उसके बाद आप बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो, हो गया आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि in this method the coefficient of y in both the equations are same and hence we could eliminate y by subtraction। मतलब ये है यहाँ पे कि सपोज करो एक इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, हाँ बेटा, एक इक्वेशन आपका इस तरीके से दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आर यू गोइंग टू डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर? नो, नॉट एट ऑल। मैंने जब क्वेश्चन देखा मुझे सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को ऐड कर दो ना सर, दोनों को ऐड कर दो सर, खत्म कहानी। या यहाँ पे मान लो 2y होता, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई होता, तो आप क्या करते सर? दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से ऐड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद दोनों जो रिजल्ट आएगा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। कर सकते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगर किसी कोफिशिएंट का अपोजिट साइन है और मैग्नीट्यूड सेम है तो आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके, अगर सेम साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, खत्म कहानी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। द नेक्स्ट मेथड दैट इज हियर इज elimination by cross multiplication method. Now this method is very important. This method is very important क्योंकि इस मेथड में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। Now I will tell you what are the गलती के चांसेस। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चंस, उसके बाद आपके कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। क्या कंफ्यूजन स्टार्ट होगा सर? यहाँ पे तो ठीक है, यू आर हैबिचुअल विद सीइंग द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दैट इज द कांस्टेंट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वालिटी। बट धीरे धीरे जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे और जब आप बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे तो उस केस में जो आपका कांस्टेंट होगा वो राइट साइड ऑफ इक्वालिटी पे आने लगेगा। मतलब आपको इक्वेशंस जो मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप के इक्वेशन से आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्या सॉल्यूशन होगा सर? ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है that is valid for the equation which is of the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Here the method is valid for the form of the equation which is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का है तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल मेक इट ऑफ दिस फॉर्म, 3x plus y minus 2 equal to 0 and 7x minus 3y minus 10 equal to 0। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? इसके बाद आप a1, a2, b1, b2 सारी चीजों को डिफाइन करोगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे और फिर आप a1, b2, a1, a2, b1, b2, c1, c2 को डिफाइन करोगे। ठीक है, लिख दिया। अब अपन डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले b1 b2 लिखो। नाउ व्हाट इज दिस b1 एंड व्हाट इज दिस b2? b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस y, b2 is the coefficient of this y। ठीक है, so b1 will be here, I am writing b1 will be equal to 1। जीरो मत लिख देना, कोई हीरो बन के कोई जीरो मत लिख देना कि सर b1 का कोफिशिएंट तो जीरो होगा। किसी को आई होप ये कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे अगर y लिखा हुआ है सर तो इसका मतलब जो y का कोफिशिएंट है दैट इज जीरो।
आई होप किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज 0 into y is always equal to 0. Good. So b1 is equal to 1, b2 will be equal to -3. I will change this color क्योंकि कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है. b1 will be equal to 1, b2 will be equal to -3. a1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 3, a1 की वैल्यू आई 3, a2 की वैल्यू आई 7. ठीक है सर. C1 की वैल्यू आएगी -2 और C2 की वैल्यू आएगी -10. 2 और 10 मत ले लेना बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर. आपका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा. मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी द सेम, बट सिंबल वाइज इट विल बी द रिवर्स. ठीक है. अब आप क्या करोगे, पहले B1 B2 लिखोगे, फिर C1 C2 लिखोगे, फिर A1 A2 लिखोगे, फिर B1 B2 लिखोगे. बहुत आसान है याद करना. BCAB ऐसा अपन ने रीजनिंग में भी पढ़ा था, याद करो. जब रीजनिंग में हम लोग वो ये सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो BCAB इस टाइप का ऑर्डर बन रहा था. हमें हमारे पास कई बार बना था, तो याद करना ये आसान है. ठीक है. तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2. ठीक है, ये हो गया, आपने ऐसे लिख लिया. उसके बाद आप क्या करोगे, अब याद करो जब अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. वैसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे. पहले अपन क्या करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, फिर करेंगे C1 A2 माइनस C2 A1, फिर करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1. फाइन. सो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 will be equal to y upon A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस A1 C2 will be equal to 1 upon A1 B2 माइनस A2 B1. ये आपने कर दिया. जब आपने ये सारा काम कर दिया, फिर आप क्या करोगे, x will be finally equal to, अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है. अब ये नंबर एक कांस्टेंट है. this will be equal to x upon some constant C1 will be equal to 1 upon some constant C2. So x will be nothing but C1 upon C2. Similarly y will be equal to, say यहाँ पे C3 है, it will be equal to C3 upon C2. उसके बाद आप x और y की वैल्यूज निकाल लेना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड and it is one of the most important methods that is always asked by the examiners. Examiner इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. See, I don't remember exactly at this time whether this method is in syllabus or not, but even if it is not in the syllabus, this method can be asked in your NTSC exam. So please study this method. Kindly study this method, because I don't remember whether this method is in the syllabus or not. ठीक है. But what if they ask this question in NTSC examination? What will you do? What will you do? Will you leave the question? I won't suggest that. So finally what I'm having, x is equal to B1 C2 minus B2 C1 divided by this, and y will be equal to this. The only precaution that you have to take is, आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आप जो इक्वेशन से बात करते हो, that is of the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0. In some cases the answers do vary. In some cases the answers don't vary. आपका जो आंसर आएगा वो बस निगेटिव आएगा ऑफ द एक्चुअल आंसर. निगेटिव आंसर लेके क्या मतलब है भाई? निगेटिव आंसर आएगा, परेशान रहोगे कि अरे सर आंसर अपोजिट आ रहा है. तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको याद रखना. x के नीचे b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 a1 a2 b1 b2 bcab. ये सीरीज याद रखो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ दिस वाज, ये तो हो गया हमारा कि कंडीशन, ये तो हो गया हमारा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस.
अब हम बात करते हैं कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के लिए मैं वापस से आप लोगों को उसी कर्व के पास लेके जाऊंगा जो कर्व हम लोगों ने बनाया था, बिकॉज दैट मेथड इज दिस मेथड इज दिस कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी is very easy to understand by this method, by the curve that we have seen, that we saw a few minutes back. ठीक है, इस कर्व पे आते हैं और इसके बाद इसमें बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना what I'm going to tell you। देखो, ये तो ग्राफ है, ये तो ग्राफ है, ये इस ग्राफ का, इसी ग्राफ का मतलब इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये बात सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो और कोफिशिएंट्स के टर्म में बात करते हैं। इस इक्वेशन को आई कैन राइट 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आई कैन राइट 5x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है जो कि मुझे पता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है सर कि व्हाट वाज द कंडीशन, हाउ कैन आई डिराइव अ जनरल कंडीशन फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं इसको A1 बोलता हूँ, इसको B1 बोलता हूँ, इसको C1 बोलता हूँ, इसको A2 बोलता हूँ, इसको B1 B2 बोलता हूँ और इसको C2 बोलता हूँ। सो here what I will say, A1 divided by A2 is not equal to B1 divided by B2. Here what I will say, A1 divided by A2 is not equal to B1 divided by B2. ये कई सारे इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद एक जनरल कंडीशन बनाई गई है कि कई सारे इक्वेशंस जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आया था, उनको ऑब्जर्व करने के बाद वी हैव ड्रॉन ए जनरल रिजल्ट दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 divided by A2 is not equal to B1 divided by B2. Now remember one thing, here they are silent about C1 and C2. They don't speak anything about C1 and C2. So you guys also don't fall in this lafda, don't fall in this, or don't fall in this bracket ki what will happen with the sign of C1 and C2. The only thing that you should remember here is A1 divided by A2 is not equal to B1 divided by B2. Fine, next. Okay, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे द टू स्ट्रेट लाइंस हैव ए पैरेलल लाइन एज द ग्राफ। तो इसको भी अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक तो ये हो गया 2y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब A1 डिवाइडेड बाई A2, यहाँ पे अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 करते हैं सर तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं B1 डिवाइडेड बाय B2 करूं तो इट विल कम आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, वेरी गुड। दैट मींस यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 तो है, बट आई विल आल्सो डू C1 डिवाइडेड बाय C2। सो C1 डिवाइडेड बाय C2 is coming out to be 4 upon 10 which is equal to 2 upon 5। इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि here A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 but not equal to C1 divided by C2। एग्जाम में, एनटीएससी के एग्जाम में आपके पास सवाल ऐसे आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinite many solutions। So there you have to compare the, there you have to equate the two things and you have to tell the value of the k। there you have to compare the two equations, coefficients compare करने के बाद आपको k की वैल्यू बतानी पड़ेगी। that will be the way, that will be the tarika in which those type of questions are to be solved, and these questions are very favorite of the examiners। try to understand one very small but a very important fact that 20 marks का आपको objective attempt करना है in your board exam।
and that 20 marks objective can be asked from anywhere. It can be asked from NTSC exam, it can be asked from any Olympiad, it can be asked from anywhere. So बेटा आप NTSC को में अपियर हो चाहे मत हो, आपको क्वेश्चंस तो सारे करने पड़ेंगे. You don't have any other option. आप अपियर होना चाहे मत होना, that is your discretion. But questions तो आपको सारे करने पड़ेंगे. क्योंकि एज एन एग्जामिनर, एज ए टीचर, मेरे को 100 आउट ऑफ 100 देने में बहुत दुख होगा. मैं यही चाहूंगा कि जो मेरा स्टूडेंट है उसका कहीं ना कहीं नंबर कटे, एंड ऑब्जेक्टिव विल बी द बेस्ट प्लेस टू कट योर मार्क्स. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लीनियर, वो इक्वेशन जहां पे 3 वेरिएबल्स हो, वो इक्वेशन जहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो. सो हियर व्हाट आई एम फाइंडिंग that a1 upon a2, that is 4 upon 2, is equal to 8 upon 4 is equal to minus 20 upon minus 10. इसका मतलब क्या हुआ दया? इसका मतलब ये हुआ सर कि here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 will be equal to c1 upon c2. Now let us try to summarize these things. Summarize करने के लिए अपन वापस से उसी स्लाइड पे आएंगे जहां से अपन ने स्टार्ट किया था. So for unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको दिखाया. ठीक है. For infinite, for no solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2. इसको हम लोग inconsistent भी बोलते हैं हिंदी में. I mean in English, in gentleman's language, we call it to be inconsistent also. या तो आपके पास क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन वर्ड रहेगा, या तो आपके पास क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट वर्ड रहेगा. ठीक है. Next is infinitely many solutions. Here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, and this condition is called condition of infinitely many solutions, or what you can say that the solutions are that the equation are consistent. ठीक है. तो ये 3 कंडीशंस हमने पढ़ ली. हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ लिया, हमने सॉल्वेबिलिटी की कंडीशंस देख ली. अब लास्ट टॉपिक क्या बचता है? वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा जिसमें आपको क्वेश्चन को फील करना होता है. यू हैव टू फील द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो. नॉर्मली इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मली 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे. जो इक्वेशन सॉल्व करवाने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 नंबर वाला हो सकता है, या 1 नंबर वाला भी हो सकता है, या 3 नंबर वाला भी हो सकता है. बट ये जो होगा, ये 5 नंबर या 4 नंबर, वट एवर इज द हाईएस्ट मार्क्स, ये वही वाला क्वेश्चन होगा. ठीक है. चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की. तो कुछ क्वेश्चंस की बात करने से पहले व्हाट वी विल डू इज